शब्द एस्पेरायर से हुई। इसका अर्थ है खुलना। रोम में इसी माह कलियां खिलकर फूल बनती थी, अर्थात बसंत का आगमन होता था। भड़काऊ भाषण देने वाले योगी आदित्यनाथ को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। चुनाव आयोग ने माना योगी आदित्यनाथ को आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी। जम्मू कश्मीर में बाढ़ का कहर जारी। बचाव कार्यों में जुटी एनडीआरएफ की टीम पर स्थानीय लोगों ने किया हमला। गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे गुजरात दौरा। गुजरात दौरे पर राजनाथ सिंह लेंगे सीमा सुरक्षा का जायजा। किंगफिशर कंपनी के मालिक विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ी। माल्या को एसबीआई ने भेजा नोटिस। एसबीआई ने कहा माल्या ने जानबूझकर नहीं लौटाया कर्ज। आईसिस ने दी ट्विटर कर्मचारियों को हत्या करने की धमकी। ट्विटर द्वारा आईसिस के अकाउंट बंद करने पर दी ट्विटर कर्मचारियों को हत्या की धमकी। Right, welcome to the Inside Story. My name is Rajiv K. Bajaj, and of course, you're watching me on Lemon News. That's right, on Lemon News. I like the sound of that. Channel Lemon News. Today, we are going to talk about, of course, we're going to talk about the country, but apart from that, we're also going to talk about one of my favorite people. A person who's not so popular at the moment, not everybody's favorite person. As far as the press is concerned, the press has been somewhat unfair to him. Not just somewhat unfair to him, they've been terribly, terribly unfair to him. We'll of course talk about the Congress, we'll talk about the NCP Congress Alliance, we'll talk about Maharashtra, we'll talk about the rest of the country. यानी हम देश के बारे में बात करेंगे, कांग्रेस एनसीपी का जो गठबंधन है उसके बारे में बात करेंगे और एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे who's one of my favorite people, as I must say. I must repeat myself over here again. After all, I interviewed him way back in 1991 when he first became the finance minister of the country, and later on again I had the opportunity to meet him many times when he was the Prime Minister. I'm of course talking about Dr. Manmohan Singh. That's right. Were we all unfair to Dr. Manmohan Singh? मेरा ये कहना है कि क्या हम लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ नाइंसाफी करी? याद रखें, we'll of course talk about this in just a minute, and we'll have Congress spokesperson Priyanka Chaturvedi also with us. But क्या हम लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वैसे अप्रिशिएट नहीं किया जितना कि हमें करना चाहिए था? याद रखें, यूरोप में Italy, Greece, Spain, all the economies were falling apart. People were out on the streets. There were no jobs. There was no food to eat. Literally, there was no food to eat. There was just one ocean of stability all over the world, and that was India. हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा, और वो इसलिए फर्क नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे. यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह was the Prime Minister. So did the Congress make a mistake, and are they making a mistake right now? Not to project the achievements of the last 10 years. पिछले 10 वर्षों में जो कांग्रेस ने अचीव किया, क्या उसको ना प्रोजेक्ट करके आज एक बार फिर क्या कांग्रेस गलती कर रही है? Let's go straight across. I believe we have Priyanka Chaturvedi with us, the Congress spokesperson. Very good evening, ma'am. Can you hear me? Can you hear me, ma'am? So much. Thank you for coming on the show. Yes, I can hear you. That's Priyanka Chaturvedi on the show. Priyanka ji, आप ये बताएं. This is Rajiv K. Bajaj from the Inside Story from Channel Lemon News. आप ये बताएं, क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की अचीवमेंट्स को प्रोजेक्ट ना करके हम लोग, यानी कांग्रेस के लोग, माफ कीजिएगा, ऑफ कोर्स माय फैमिली फ्रॉम द कांग्रेस, सो आई मस्ट अपोलोजाइज अगेन, आई एम नॉट फ्रॉम द कांग्रेस,
क्या कांग्रेस एक बार फिर गलती कर रही है? प्रियंका जी बताएं। नहीं, देखिए, कांग्रेस ने हमेशा एक ही सोच से हम आगे बढ़े हैं कि देश की जनता के लिए हमने काम किया है। जी हमारी जो भी अचीवमेंट्स रही हैं देश को के हित में रही हैं, और जी ना ही हमने उसको पब्लिसिटी देने की कोशिश की, ना ही हमने एक ऐसी कोशिश की जहां पे हम ये दिखाएं कि हमारे सिवा किसी और कोई और काम नहीं कर सकता है। जी हमारे काम था कि लोगों तक जो तकलीफें हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उनको हम समझें, उनकी लाइफ बेटर बनाएं, इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करें, देश को आगे बढ़ाएं और देश की प्रगति में हम हाथ दें। जी पर आज का जो समय आ गया है वो थोड़ा एक पीआर डोमिनेटेड है, पब्लिक रिलेशंस डोमिनेटेड है, परसेप्शन डोमिनेटेड है। जी सोशल मीडिया एक और चैनल है जिसकी वजह से किसी तरीके की बातें जी स्प्रेड होती हैं। जी तो आज जैसे मनमोहन सिंह जी ने खुद ने कहा था कि इतिहास गवाह होगा कि उन्होंने क्या क्या इस देश के लिए काम किया। ये राइट 10 साल जो हमने दिए हैं, 10 साल जो मैं यूपीए सरकार को कहूंगी, जी इकोनॉमी की तरफ देख लें, विमेन एम्पावरमेंट की तरफ देख लें, हम अगर देखें कि रूरल अर्बन रेशियो भी हम देखें, तो हमने सब तरह से प्रगति की ओर ही हम बढ़े हैं। देश जी 10 साल में आगे ही बढ़ा है। जी कंसिडरिंग आपने भी शो की शुरुआत में कहा था कि किस तरीके की चैलेंजेस यूरोपियन कंट्रीज फेस कर रही थी, फिर भी हम अपने आप को इंसुलेट करके बैठे थे। जी कितने लोग नौकरियां छूट सकती थी पर मनरेगा ने उनको नौकरियों से बचाया। कितने किसान थे जिनकी प्रॉब्लम्स, मैं कहूंगी कि जीडीपी रेशियो इफेक्ट हुआ, इन्फ्लेशन थोड़ा तकलीफ दिया, पर उसमें भी हम कहेंगे हमने हर तरीके से कोशिश की कि हम लोगों को उससे इंसुलेट कर सकें। तो आज जैसे मैंने कहा कि थोड़ा परसेप्शन का जमाना है, थोड़ा मार्केटिंग का जमाना है, थोड़ा पीआर का जमाना है। तो हो सकता है कि हम वहां पे थोड़े हमने कमी महसूस की हो, हमारी कम्युनिकेशन नहीं जी इफेक्टिव रही हो, जहां हम लोगों तक पहुंचा पाए कि हमने क्या क्या काम यहाँ किए। पर email for you in just a little while. It's info@lemon news, and do send in your response on what I've said. Now, question is this for you. Can you hear me? Can you hear me? Is your earpiece all right? Yes, I can hear you. Yeah, you're Yes, okay. Okay. I can hear you clearly. Right. Yes. Now, the question is this: why did we not project? Why did the Congress not project Dr. Manmohan Singh in a proper manner? I still say that perhaps the Narendra Modi wave was unstoppable. There comes a time in the history of every nation, in the political evolution of every nation, where something is a given. But at the same time, why did the Congress fail to give a good fight? And will you give a good fight now in Maharashtra? Aren't you making the same mistakes in Maharashtra? For example, the great new policy that you have announced yesterday with regard to cluster development, this could have been done 2 years ago. And even now, the proper projection of the same has not taken place. Why is the Congress still playing on the back foot? Why? Priyanka ji बताएं. ओके, मैं कहूंगी यहाँ पे दो डिफरेंसेस हैं। देयर आर टू डिफरेंसेस हियर। एक तो पहले मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जब कांग्रेस की ये परंपरा रही है कि हम कोई भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करते हैं या कोई फेस देकर हम लोग ने इलेक्शन नहीं लड़ा है, हमने एज अ टीम लड़ा है और लड़ते आए हैं। जब यूपीए सेकेंड टर्म में जा रहा था तब हमने मनमोहन सिंह जी को एज द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हमने डिक्लेयर किया था। एक वही था जहां पे हमने we went ahead with Manmohan Singh ji as the face of the Congress party for the second term. That's right. So, but our entire हमारी नीति रही है, हमने कभी किसी पर्सन को प्रोजेक्ट नहीं किया, एज अ पार्टी हम लड़े हैं। जी हालात बदले हैं। नरेंद्र मोदी जी को एक फेस बनाकर बीजेपी ने खड़ा किया था, वो एक डेवलपमेंट के एजेंडा से आए थे। जो भी उनका एजेंडा रहा हो वो अभी काफी स्पष्ट होता जा रहा है उनके इलेक्शन के बाद। अभी अगर हम महाराष्ट्र असेंबली में देखेंगे, हम बहुत क्लियर हैं कि हमारे फेस कौन है, किसके नेतृत्व के अंदर सरकार बनेगी। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वही हमारे इलेक्शन फेज हैं और वही हमारे सीएम कैंडिडेट भी रहेंगे आने वाले समय में असेंबली इलेक्शंस में। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहूंगी कि हाँ, हो सकता है कांग्रेस में जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, हमने हमेशा काम में बिलीव किया है, ना कि उसका जैसे मैं कहूंगी कि पब्लिसिटी करने में। जैसे मनमोहन सिंह जी के बारे में हमने हमेशा बोला है, कम बोला हमारा काम बोला। वैसे ही महाराष्ट्र में हम कम बोले हैं पर हमारा काम बोल रहा है। और ये महाराष्ट्र की जनता जानती है कि हमारा लीडर कौन है, यहाँ से हम किसके बेसिस पे लड़ रहे हैं। हमारे तो हम कहेंगे कांग्रेस का तो एक चेहरा है इस टाइम, तो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, मनसे, किसी को भी ले लीजिए, किसी का पास कोई ऐसा लीडर कैंडिडेट नहीं है जो सीएम बनने लायक हो। राइट। लेकिन जहां तक प्रियंका जी, जहां तक पृथ्वीराज चौहान जी का प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान जी के खिलाफ जिस प्रकार बगावत हो रही है हर जगह पे, क्या आपको लगता नहीं है
कि यहां पर पृथ्वीराज चौहान जी को या तो अपने आप में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है या फिर पार्टी के अंदर जो बगावत है। और यहां पर मैं बड़ी जिम्मेदारी से, बहुत जिम्मेदारी से, विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी एट माय कमांड, आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट नाउ फॉर द लास्ट 32 ईयर्स, 32 साल से मैं जर्नलिज्म में हूं। मैं यह आपसे कहना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के दौरान आप ही के लोग, कांग्रेस के ही लोगों ने अलग अलग जहां पर जाकर के बोला कि कमल पर मोहर लगाइए। ये रिकॉर्डेड है, वी हैव गॉट दिस एंड आई एम श्योर यू हैव गॉट दिस टू। हाउ आर यू गोइंग टू प्रिवेंट दैट इन दिस इलेक्शन? इस इलेक्शन में ऐसी कोई हरकत ना करे, कांग्रेस के ही लोग जाकर के कांग्रेस को ना हराएं। इसके लिए आप क्या करने वाले हैं, प्रियंका जी बताएं। नहीं, ये तो क्लियरली आई एम अनअवेयर ऑफ समथिंग लाइक दिस के आई एम सरप्राइज्ड, आई एम शॉक्ड दैट यू डोंट नो अबाउट दिस and I totally deny this that there could be, देखिए कोई भी पार्टी चलाने में, कोई भी लीडरशिप में किसी ना कहीं किसी को लगेगा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, कि कुछ चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस को ओवरकम कर उनकी समस्याओं को समझकर अगर हम देखेंगे कि थोड़ी बहुत दिक्कतें आई थी, जहाँ रानी साहब ने भी कुछ कहा था, पर अब रानी साहब हमारी एक टीम हेड कर रहे हैं, पूरी कैंपेन कमेटी हेड कर रहे हैं, अशोक चौहान जी हेड कर रहे हैं। तो सारे लीडरशिप जो हमारी है बहुत क्लियर है और कौन किसकी क्या जिम्मेदारी है वो भी हम स्पष्ट हैं। बस यही कहना चाहूंगी कि हर पार्टी में, हर सिर्फ कांग्रेस का ही नहीं है, हर पार्टी में इस तरीके की नोकझोंक होती रहती है, पर एज लॉन्ग एज पार्टी के अंदर रहे, लोग समझें, उनके प्रॉब्लम्स का जो समाधान है हम ढूंढें। और अभी सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है कि महाराष्ट्र फिर से जीत कर आना है हमें। Priyanka ji, let me take you back a little bit. I'll just take a little more of your time. I'll take you back just a little bit. All right? Over a matter of allocation of just 2 flats. 2 flats की allocation के ऊपर एक मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा जब भी कोई स्कैम सामने आता था, तथाकथित तौर पर स्कैम, मैं ये नहीं मानता कि वास्तविकता में स्कैम है, थोड़ा बहुत स्कैम है, कोई 10,000 करोड़ का, 12,000 करोड़ का जरूर स्कैम हुआ होगा, जो 2G स्कैम था। अब तक जो 1,73,000 करोड़ का जो फिगर आया था CAG द्वारा कि 1,73,000 करोड़ का स्कैम हुआ है 2G में, आज तक ना उसका तथ्य मिला है, ना उसका सबूत मिला है, ना उसकी कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन मिली है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस में कब से यह प्रथा चल पड़ी कि जब भी कोई भी उठ करके पत्थर मारे तो आप श्री राम की तरह सीता को एक बार फिर वनवास दे दें। मैं आपसे जानना चाहता हूं यह प्रथा कांग्रेस में कब से चली? अशोक चौहान जी के खिलाफ कुछ हुआ, आपने अशोक चौहान जी को बोल दिया चले जाइए। कैबिनेट के अंदर ना जाने 1 नहीं 2 नहीं 3 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ गया। आज तक उनके खिलाफ कोई भी आज तक उनके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूं ये आखिरकार क्यों किया? आफ्टर ऑल, एज फार एज मिस्टर अशोक चौहान इज कंसर्न्ड, ही वाज अ गुड चीफ मिनिस्टर. Certainly there was a case against him. Certainly there were allegations against him. The case is still going on. Now, by contrast, you look at the BJP. You've got a man sitting in the PMO, Minister of State in the PMO, who is charged with rape, and the BJP is not even reacting. My point is, since when has the Congress decided that irrespective of whatever happens to the country, we will go by so-called alleged principled norms, perhaps made by certain members of the press? प्रियंका जी बताएं। नहीं, देखिए इसमें 2 चीज बहुत स्पष्ट हैं। जब हम एक पब्लिक स्पेस में हो और पब्लिक से हमारा नाता हो और कहीं किसी भी तरीके से, देखिए भारतीय जनता पार्टी के क्या नियम कानून हैं उसमें मैं टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी, पर कांग्रेस ने हमेशा एक कहावत है इंग्लिश में, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। Right. यही हमने अप्लाई किया है। And we know what happened to Caesar. लाइफ में हैं, we are open to... and we all know what happened to Caesar, right? The Ides of March. We all know what happened to Caesar. No, that's exactly what has happened to you, man. No, absolutely. No, absolutely. Right. I would just say one thing कि हमारा एक प्रिंसिपल है कि अगर जनता को लगे कि कोई प्रोब होना चाहिए और कोई ऐसी चीजें हैं जो क्लियर होनी चाहिए, मैं कहूंगी कि आप
हम अशोक चौहान जी ने तो सबसे बड़ा स्टेप लिया कि स्टेप डाउन किया का जब आप अगर मुझ पे मैं किसी तरीके से गिल्टी हूं तो मैं स्टेप डाउन करने को तैयार हूं एंड आई विल नॉट गो बैक टू द सीट टिल माय नेम इज नॉट क्लियर। Right. ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पब्लिक पर्सनैलिटी। Right. अब जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो तो एकदम अनअशेम्ड हंगर फॉर पावर कहते हैं कि निहाल चंद बैठे हुए हैं, जब गुजरात कैबिनेट में मिनिस्टर्स, इंडाइक्टेड मिनिस्टर्स अभी तक कैबिनेट में बैठे हुए हैं, जी। उन पे कुछ नहीं किया जा रहा है। तो देश की जनता को देखना जरूरी है कि कौन सी पार्टी है, कौन सी एक ऐसी पार्टी थी जिसने अकाउंटेबिलिटी को इम्पोर्टेंट माना। जब अगर हमारे सिर्फ एलिज्ड स्कैम्स को लेकर हमारे लोग स्टेप डाउन कर सकते हैं, उनको गद्दी से प्रेम नहीं है, उनको अपने नाम से ज्यादा वो है कि हमारा नाम कहीं खराब ना हो, जब तक हमारा नाम क्लियर नहीं होता हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। तो हम यही कहेंगे कि ये देश की जनता को जानना जरूरी है कि जब जब अकाउंटेबिलिटी की बात आई, भले ही एलिज्ड हो, भले ही एलिज्ड हो, हमने एक स्टैंड लिया कि हम इसको नहीं सहेंगे। पर यहाँ पे एक भारतीय जनता पार्टी अब बनकर आई है, राज्य सरकार भी उनकी देख लीजिए, मध्य प्रदेश में क्या स्कैम्स कर रहे हैं वो चल ही रहा है। व्यापम स्कैम को अब तक सीबीआई को देने को तैयार नहीं है। गुजरात में कन्विक्टेड हमारे एमएलए पड़े हुए हैं, पीएमओ में हमारे एमएलए हैं, उनकी पूरी पार्टी में जो उनके वाइस प्रेसिडेंट अभी बने हैं येदी जी, वो भी करप्शन के मामले में फंसे पड़े हुए हैं। तो ये देश की जनता को जानना है कि जब अकाउंटेबिलिटी की बात आई, स्टेपिंग डाउन की बात आई, तो कौन सी पार्टी ने किया है? Ma'am, but how does it make a difference? At the end of the day, politics is a game of power. Politics is not a zero-sum game. It is not where you can afford to be holier than the next man. You have to be practical also. Practicality is something, or pragmatism is something that everybody has learned from the Congress. Since when has the Congress decided to shoot itself in the foot? Because that's exactly what you're doing right now. Because at the end of the day, the so-called channel, the so-called media hype which was created with regard to all these people, at the end of the day has just fizzled out. And the only people who have benefited are your political rivals. So when are you going to wake up and go back to the days when the Congress was a very, very pragmatic party? Ma'am. No, I have just one thing to say. Pragmatism does not mean that we become brazen about some things. Now, we also have a responsibility. Please understand, we are elected by the people of this country. हमें जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, आज हम चीफ मिनिस्टर बनते हैं या हम कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स बनते हैं, हमें पहले तो देश की जनता ने हमें इलेक्ट कर संसद में भेजा है। वहां से आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपनी कैबिनेट डिसाइड करते हैं। तो वी आर लिविंग इन अ पब्लिक लाइफ, पब्लिक स्फीयर। अगर पब्लिक को ऐसा लग रहा है, उनका कॉन्फिडेंस हमसे हटता है कोई भी कैंडिडेट को लेकर या किसी पर्सन को लेकर, तो हमारे हिसाब से जो हमारी वो होनी चाहिए, जो आई वुड से pragmatism would be that we go as per what the people of the country want. If people of the country would be the wisest judge, आज उनको 10 साल की यूपीए सरकार मिली, अब आने वाले समय पे उनको मोदी सरकार मिलेगी। जो जो उनको वायदे किए गए, अगर मोदी did not understand this. I said, but you are responsible for it. The fact that public opinion turned against you and turned towards Modi, a large part of the responsibility lies with you and your leadership. यानी जिम्मेवारी आपके और आपके नेतृत्व के कंधों के ऊपर भी है, क्योंकि आप लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बैकग्राउंड में रखा, आप लोगों ने कोई भी आदमी ने खड़ा होकर के कंकड़ मारा कांग्रेस के ऊपर, आपने अपने आदमी का इस्तीफा मांग लिया, आपने अशोक चौहान जी का इस्तीफा मांग लिया, आपने ए राजा जी का इस्तीफा मांग लिया, आपने सुरेश कलमाड़ी जी का इस्तीफा मांग लिया। आखिरकार जहां तक लोगों का प्रश्न है, लोगों को तो यही लगा कि भाई इसमें कुछ ना कुछ खोट होगा, दाल में कुछ काला है, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं, और वही नतीजा आपको भोगने को मिला लोकसभा चुनाव में। मैं आपसे जानना चाहता हूं मैम, क्योंकि इस वक्त हम मुंबई महाराष्ट्र में बैठे हैं, क्या महाराष्ट्र में कोई चीज अलग होगी, या यहां पर भी आप सत्ता को दोनों हाथों से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को सौंपने वाले हैं? क्योंकि आपने केंद्र में वही किया है, कांग्रेस नहीं हारी है, कांग्रेस को हराया गया है कांग्रेस की ही हरकतों द्वारा। मैम बताएं। नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि प्रॉब्लम इससे है कि हमने अपने नेताओं से अकाउंटेबिलिटी मांगी, हमने अगर किसी तरीके के उनके ऊपर नाम उछाला गया तो उन्होंने सामने से आकर कहा कि हम स्टेप डाउन करते हैं जब तक हमारा नाम नहीं क्लियर हो, हम सत्ता के पीछे भागे कि इस पावर द बी ऑल एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग, और आर वी फाइंडिंग सॉल्यूशंस फॉर प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस दिस कंट्री इज फेसिंग। मैं आपसे बस यही पूछना चाह रही हूँ कि हाँ, मैंने शुरू में कहा कि हमारी कम्युनिकेशन कुछ थी जो थोड़ी कमजोर रही होगी,
पर जहां तक अकाउंटेबिलिटी की बात है, जहां तक लोगों को साथ लेकर जाने की बात है, हमारे हर टीम मेंबर हमारे साथ। महाराष्ट्र को अगर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र में हमारे जो सीएम बनकर आए हैं, जो हमारे नेता हैं जिनके नेतृत्व में हम ये इलेक्शन लड़ेंगे, उनकी भी पर्सनालिटी नॉन करप्ट पर्सनालिटी है, एक लीडर है, उन्होंने भी काफी काम किए हैं। तो देश की जनता, महाराष्ट्र की भी जनता देख रही है कि हमने क्या क्या काम किए हैं, प्रियंका उस जी, एक बेसिस आखिरी पे सवाल, करेंगे। वो सब और ठीक है। देश की जनता ने ये भी देखा, मैं जी, एक बात जी, एक जी, बात जी, कंप्लीट जी, कर जी, दूं, जी, देश कहें, ने कहें। और महाराष्ट्र ने ये भी देखा कि किस तरीके से कांग्रेस ने एक अकाउंटेबिलिटी लेकर अशोक जी को स्टेप डाउन करने को कहा, या डी राजा को स्टेप डाउन करने को जी। कहा। आने वाले समय में जैसे कोल ब्लॉक्स को अब भारतीय जनता पार्टी कुछ कुछ कंपनीज को बचाने की कोशिश में लगी है, देश की जनता वो भी देखेगी, आप ही की मीडिया वो भी कवर करेगी। जिस जिस तरीके से अकाउंटेबिलिटी आपने हमसे मांगी, हम ये होप करेंगे कि मीडिया वही अकाउंटेबिलिटी अब भारतीय जनता पार्टी से मांगेगी। महाराष्ट्र में हो, देश में हो, जी। कहीं भी हो, देश के कोई भी कोने में हो, अकाउंटेबिलिटी से कोई नहीं पीछे हट सकता। हम सरकार में थे इसलिए हमारी लेकिन- अकाउंटेबिलिटी ज्यादा बनती थी, लेकिन और प्रियंका हमने जी- हम लोगों के सामने हमने वही किया जो लोग हमसे चाहते थे लेकिन या प्रियंका उम्मीद जी, रखते थे। प्रियंका जी, हो अकाउंटेबिलिटी के सकता है साथ वो आप वोट में नहीं अकाउंटेबिलिटी की कन्वर्ट बात किया कर हो। रही हैं। अकाउंटेबिलिटी चलिए ठीक है, वो मैं मानता हूं, आपने you became proactive, you decided to ask a lot of people to resign and so on and so forth. We'll go into that on at some other point of time. But let me take you back to, obviously you're a very young person. Let me take you back to 1971. Mrs. Gandhi had just won the elections, और इलेक्शन जीतने के बाद भी कांग्रेस के भीतर और पुरानी जो कांग्रेस ओ हुआ करती थी, ना जाने कितने लांछन, कितने आरोप इंदिरा जी के ऊपर लगे। अगर इंदिरा जी आपकी पॉलिसी फॉलो करती तो आज हम 1971 में हम लोग पाकिस्तान से युद्ध ना जीतते, बांग्लादेश नहीं बनता, वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान नहीं तोड़ा जाता, हिंदुस्तान के आजादी के इतिहास में सबसे बड़ी जीत हमें हासिल नहीं होती अगर इंदिरा जी भी यही कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करती। मेरा यह कहना है मैम कि अगर अकाउंटेबिलिटी है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। Anybody can get up and make all sorts of allegations which are yet to be proven. My only feeling over here is that perhaps you were too eager to please a certain lobby. Perhaps the Congress made a mistake by asking too many of its people to go. After all, at the end of the day, loyalty matters. And that's what is going to be the litmus test of the Congress in Maharashtra. In Maharashtra, do you have the loyalty of all your satraps? For example, क्या अशोक चव्हाण जी असल में काम कर रहे हैं, दिल से काम कर रहे हैं? क्या नारायण राणे जी दिल से काम कर रहे हैं? क्या सुरेश कलमाडी जी पूरे तहे दिल से कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के लिए काम करेंगे? आखिरी सवाल मैं प्रियंका जी बताएं। हाँ, मैं 2-3 चीजें यहाँ पे कहना चाहूंगी। सब लोग बिल्कुल मन से काम कर रहे हैं, सब लोग जुटे हुए हैं, और अगर बिल्कुल एक बात स्पष्ट है कि अगर लीडर्स, ये सारे लीडर्स साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे, सो यू ऑल्सो हैव अ चैलेंज ऑफ लूजिंग पावर। अगर आप लोगों को सरकार चलानी है, सीएम जो भी है, टॉप बॉस जो भी है, पर अगर आप लोगों को सत्ता में रहना है, देश के लिए काम करना है, महाराष्ट्र को लेकर काम करना है, तो आप सबको ही एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। ये हमने माना है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी हमने समझी हैं। हाँ, एक फैमिली में 19-20 होता है, किसी को लगता है किसी के साथ कम ज्यादा हुआ है, किसी के साथ ज्यादा हुआ है, पर जब एक वॉर जब लड़ने जाते हैं, जिसको मैं कहूंगी ये असेंबली इलेक्शन एक तरीके का वॉर है, जब एक वॉर लड़ने जाते हैं, हर फैमिली मेंबर एक साथ मिलकर सारे अपने काम मिलकर करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ये वॉर जीते। तो सभी जुटेंगे, सभी जानते हैं कि this is important. Maharashtra is important for the Congress. Maharashtra is important for India, and we have to show the country that yes, we are fighting fit, and सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन के तार जुड़े हैं लोगों से। तो जो 1971 के डिसीजंस थे, जहां पे मैं कहूंगी कि कम्युनिकेशन टॉप डाउन होता था, वो अब नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जहां पे यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर लार्जर पब्लिक सपोर्ट, एंड देयर आर challenges, bigger challenges than we faced in 1971, different kind of challenges. It's not about India Pakistan, it's not about India Bangladesh. There are other bigger challenges within the country that we face. तो अगर हम उसको हैंडल कर लेंगे, और पार्टी, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारे हर पार्टी मेंबर जानता है कि ये आने वाला चुनाव महाराष्ट्र के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो जो भी अभी उनके गिले शिकवे हैं वो उसको साइड में रखकर हम एकजुट होकर लड़ेंगे, और
भाजपा शिवसेना को फिर से हम मात देंगे। All right, let's leave it at that. As I said, challenges, we are facing different set of challenges. as I said, you cannot compare 71 to what it is now. Let's leave it at that. But it's the same party. It's the evolution of the same party. That's Priyanka Chaturvedi. Thank you so much for talking to us, and very confident about the fact that the Congress will at least perform well. She didn't say we're going to win. She did say we are going to perform well. ऐसा प्रियंका चतुर्वेदी जी ने कहा। प्रियंका चतुर्वेदी जी कांग्रेस की प्रवक्ता। And of course, you can see the graphics right over there. क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ नाइंसाफी हुई है? इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। प्रियंका चतुर्वेदी जी से इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। जब यूरोप में तबाही मची हुई थी, यूरोप की अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, जब यूरोपीय देश इधर उधर कटोरा लेकर भाग रहे थे, लोग सड़क पर थे, भूखे मर रहे थे, तब एक स्थिर देश था पूरे विश्व में, वो था हिंदुस्तान यानी भारत। इंडिया was an island of stability in this sea of uncertainty where Europe is concerned. लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस डॉक्टर मनमोहन सिंह को भूल गई। कांग्रेस डॉक्टर मनमोहन सिंह को भूल गई। कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद नहीं किया। कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को आगे नहीं किया। और क्योंकि कांग्रेस अपने ही लोगों को ज्यादातर भूल जाती है, भले वो अशोक चौहान हो, भले वो सुरेश कलमाड़ी हों, मानता हूं उनके खिलाफ आरोप है, मानता हूं वो आरोपित व्यक्ति हैं, लेकिन आज की तारीख में राजनीति में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आरोपित नहीं है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर कुछ ना कुछ आरोप लगाई है, लेकिन हर आरोप को लेकर के अगर कोई इस्तीफा देना शुरू कर दे तो कुछ नहीं बचेगा, जैसा कि कांग्रेस का कुछ नहीं बचा है। सिर्फ 44 सीटें लेकर के लोकसभा में कांग्रेस आई है, only 44 seats, and that is all thanks to the fact that they would resign each time somebody would point a finger at them, and that's what resulted in the Narendra Modi wave. यानी नरेंद्र मोदी की जो लहर चली वो इसलिए भी चली क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल डरी हुई थी, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर कोई कंकड़ भी मारता था तो कांग्रेस का एक मंत्री गिरता था, यानी इस्तीफा देता था। इसलिए नरेंद्र मोदी की लहर चली। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी की लहर अब थम गई है? क्या जिस प्रकार बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव ने एक समीकरण किया, एक हिसाब किया, एक अरिथमेटिक किया, क्या लालू यादव और नीतीश कुमार के अलजबरे से क्या नरेंद्र मोदी की वेव थम सकती है? आई टेल यू व्हाट, लेट्स टेक अ लुक एट द नरेंद्र मोदी वेव। क्या नरेंद्र मोदी की जो वेव है, क्या नरेंद्र मोदी की जो लहर है, क्या वो अब थम गई है? लेट्स टेक अ लुक। मोदी की क़यादत में 2014 लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान जब बीजेपी ने किया तो देश में मोदी नाम का एक सैलाब आ गया। राजनीतिक विशेषज्ञों ने इसे मोदी लहर का नाम दिया। ताबड़तोड़ प्रचार ने मोदी को देश की जनता का नायक बना दिया और उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। I want to ask the question. Sir, how can I become a Prime Minister of India, sir? 2024 के चुनाव की तैयारी करो। और इसका मतलब ये होगा कि तक मुझे कोई खतरा नहीं है। मोदी के जीत के पीछे की वजह थी उनका सर्वजन विकास का नारा और मोदी के वादों का पुलिंदा। लोकसभा चुनावों से पहले मोदी के विरोधियों ने उनकी लहर को एक भ्रम बताया, लेकिन बदलाव की इस लहर ने वो कर दिखाया जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। जी हाँ, बीजेपी ने अपने दम पर सत्ता हासिल की। ऐसा पहली बार था कि किसी गैर कांग्रेसी दल ने पूर्ण बहुमत से सत्ता की चाबी हासिल की। सवाल है कि सत्ता की चाबी हासिल करने के बाद जो मोदी लहर 2014 लोकसभा चुनावों के दौरान थी, क्या वही आगे भी बरकरार रहने वाली है? गौरतलब है कि इस साल के अंत तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। मोदी का जो जलवा लोकसभा चुनावों में था, क्या बीजेपी वही प्रदर्शन इन राज्यों में दोहरा पाएगी? ये सवाल उठना इसलिए लाजमी है क्योंकि प्रधानमंत्री के किसी भी फैसले से अब तक जनता को कोई बड़ी राहत नहीं मिली है और अंदर खाने बीजेपी नेतृत्व ने भी ये माना है कि मोदी लहर पिछले कुछ दिनों में कम हुई है। हाल ही में मुंबई में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इशारों में माना था कि समय समय पर जनता की सोच बदलती है और आने वाले विधानसभा चुनावों को पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी पर आधारित न रखें।
पार्टी के कार्यकर्ता अपने दमखम पर जीत दिलाने के लिए प्रयास करें। की हे जे काही यश आहे ते यश पाहिल्यानंतर उतू नका मातू नका आणि घेतला वसा समाजसेवेचा हा सोडू नका। सर्वसामान्य माणूस, सर्वसामान्य कार्यकर्ता यांचा आदर मान राखा। अमित शाह ने कहा था, जिस मोदी लहर के दम पर पार्टी ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 23 पर जीत हासिल की, वो अब कमजोर हो रही है, क्योंकि जनता की सोच समय समय पर बदलती रहती है। कार्यकर्ता चुनावों को पूरी तरह मोदी के करिश्मे पर आधारित ना रखें, बल्कि सत्तारूढ़ कांग्रेस एनसीपी के कुशासन को बेनकाब कर जनता के सामने रखें। थमती मोदी लहर का असर हाल ही में बिहार में 10 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनावों में देखा गया, जहां लालू नीतीश के गठबंधन ने 10 में से 16 सीटों पर जीत हासिल कर बीजेपी को झटका दिया। में आगामी विधानसभा चुनावों का बिगुल लगभग फूंक गया है। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, तो एक बार फिर मोदी लहर की परीक्षा होनी बाकी है। मोदी लहर का जादू लोकसभा चुनावों में था, लेकिन विधानसभा चुनावों में वही प्रदर्शन दोहराना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। Right, you saw that? You saw that. Is the Modi Lahar, Modi wave fading? क्या नरेंद्र मोदी साहब की जो लहर है, क्या उसमें कुछ कमी आई है? We also have Mayank Jain in the studio with us. Of course, we'll talk to him in just a minute. But before that, let's go straight across to our old friend, Shaina NC. Shaina NC, now a senior leader of the BJP and spokesperson for the Bharatiya Janata Party at the moment with us. Good evening, Shaina. Can you hear me? Yes, I can. Very This well. is Rajiv K. Bajaj from Lemon News. Thank you so much. After a long time, we've got you on the show. We are so happy. Thank you so much, Shaina. Thank you. Shaina, is it true or is it not true that there is perhaps a feeling within the BJP also that maybe now all of you will have to work slightly harder to replicate the Lok Sabha results here in the Maharashtra assembly elections? Shaina. There's no way that anyone is complacent, and we hope and pray that our cadre is completely vigilant. Ji. The point is that yes, there have been 4 months since the Lok Sabha elections, but our Yes. performance in these 100 days has been spectacular. People realize that miracles don't happen overnight. At the same time, they have absolute faith in Modi ji's style of good governance, Ji. stability for the nation. Right. And I think we are only espousing to replicate that in the state of Maharashtra. Now, this is an election for you to lose. At the moment with us, Shaina NC, this is an election for you to lose, because practically every survey that we have conducted, all the reports that we are getting from everywhere, very clearly shows that the Bharatiya Janata Party, Shiv Sena combined is so way ahead that you will have to do something really and truly terrible to make yourself lose. Now, will that lead to overconfidence? Or do you think all your people are going to work as hard as they did during the Lok Sabha elections? Shaina. The issues for a Lok Sabha election are very different to that of an assembly, and we realize that the smaller the election, the harder the effort. Yes. I don't think there's any reason that we should be complacent. The good governance model that we have at the center, clearly we want replicated in the home state. And you've had 15 years of absolute corrupt rule by the Congress NCP. So let's just keep our fingers crossed that we work every inch forward to ensure that they are not just defeated, but like in the center where they don't have a leader of opposition Ji. in parliament, it's almost the same situation here in Maharashtra. Right. Shaina, one last question to you. Even during the last assembly elections, जो पिछली assembly elections हुई थी, तब भी पृथ्वीराज चौहान जी ने एक बहुत बड़ी स्कीम अनाउंस करी थी। तब तक अगर आपको याद होगा कि SRA स्कीम के तहत वही पात्र माना जाता था जिसका घर 1995 तक वहां पर था। उसके बाद उन्होंने चेंज करके उसको एक तो डेट 2000 कर दी, और उसके अलावा यह कह दिया कि आदमी पात्र नहीं है, बिल्डिंग पात्र है। लेकिन इसका फायदा उनको कुछ खास नहीं हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेशन इलेक्शन में उनको कुछ खास फायदा नहीं हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी क्लस्टर डेवलपमेंट को लेकर के, क्लस्टर रीडेवलपमेंट को लेकर के, जो सिर्फ साउथ मुंबई में ही लागू है, अब यह कह दिया गया है बिल्डर्स विल नाउ बी एबल टू कंस्ट्रक्ट मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स गोइंग अप टू ऑलमोस्ट 80 स्टोरीज। 80 मंजिल की बिल्डिंग्स की परमिशन तकरीबन दे दी गई है। नाउ, is this a sop which is being handed out to people?
And don't you think, this is my personal opinion, of course, that this, I think, could be perhaps the greatest catastrophe, or the makings of a greatest catastrophe that Mumbai could face. We do not have the infrastructure, we do not have the fire brigade facilities, we do not have the water, we do not have the space, and we have just given permission for 80-storied structures. China. मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो सरकार है इतनी जी। लालची है जी। कि वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि वो एन मौके पे क्या कर सकते हैं। जी। लेकिन पब्लिक सब कुछ जानती है। आपको याद होगा कि राजस्थान में अशोक गहलोत ने ऐसे ही फ्री शॉप सबको दिए 6 महीने पहले, इलेक्शन के पहले। उसके जी। बावजूद उनकी हार हुई, जी। क्योंकि लोग जानते हैं कि जब आप ये फ्रीबीज देते हैं तो उसके साथ साथ जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जो आपके पास प्लानिंग नहीं, तो आप कैसे ये प्राप्त करेंगे। एंड आई थिंक इन अ वार्ड लाइक दी वार्ड where these cluster developments are being talked about, Right. one needs to understand that not even a fire brigade can enter and exit those narrow lanes. No, they can't. So to talk about 80-story buildings Yes. is not just a disaster, it's absolute disaster management which will not be possible. Right. So I think that there are lots of questions when it comes to their lackadaisical attitude and their freebies and stops. Time has come to completely negate their freebie attitudes by voting for good governance, because people can only empower their lives if they are literate, employed and secure, which they Right. can be only with the NDA government. Shana, you also stood for election way back from Bandra. Are you going to be standing for election again? Whatever my party decides is Right. the final. And as far as the Chief Minister's post is concerned, has that been decided? Or is the BJP Sena going to go with the old formula of CM from the Sena, Deputy CM from the Bharatiya Janata Party? Revenue Minister will be from the Sena, Home Minister from the Bharatiya Janata Party, just like what took place in 95. Will the 95 formula be applied again, or will there be a change? It's extremely hypothetical. No, the answer is that the party which has the largest numbers will clearly take the lead. And I think that we've had a very, very good alliance for 25 years, and there's going to be no friction vis-a-vis who's to be in power and what post who's to take, but clearly Right. it's based on the numbers. Just a small correction. You have an alliance for the last 30 years, from 1984 up till Yeah. today. For 30 years with the Shiv Sena. Shaina, thank you very much for talking Thank to you. us. Thank you so much. Thank you. Right, that was Shaina NC. And of course, she was kind of, how shall I say, not too forthcoming where the alliance is concerned, but very, very angry at the fact that very angry at the fact, of course, that how dare they, come out with new rules as far as cluster development is concerned. और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए बी वार्ड के अंदर फायर ब्रिगेड भी नहीं जा सकती, लेकिन वो ये बताना भूल गई कि अगर क्लस्टर रीडेवलपमेंट होती है तो वो सारे घर टूटेंगे, उनकी जगह पर नई नई इमारतें बनेंगी, और वो जो हाउस गलीज हैं, बाकी सब चीज़ें हैं, उनको तोड़ना पड़ेगा ही अगर इस शहर को बचाना है तो, यानी मुंबई शहर को अगर बचाना है तो। और यहाँ पर इस विषय के बारे में हम लोग कल ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे। वो इसलिए हम लोग विस्तार से बात करेंगे क्योंकि ये रीडेवलपमेंट की जो परमिशन दी गई है, 80 माला की बिल्डिंग्स की जो परमिशन दी गई है, वो सिर्फ और सिर्फ दक्षिण मुंबई के लिए है। जहां तक कि उपनगर का सवाल है, नॉर्थ मुंबई का सवाल है, इट इज एज इफ एवरीबडी इज फॉरगॉटन अबाउट नॉर्थ बॉम्बे, एज इफ नॉर्थ बॉम्बे डज नॉट एग्जिस्ट। जहां तक कि उत्तर मुंबई का प्रश्न है, सबर्ब्स का प्रश्न है, एज इफ वी आर जस्ट नॉट देयर. And that I think is terrible. That I think is terrible. Right, at the moment with us from the Aam Aadmi Party, we've got Mayank Jain. Mayank, thank you very much for coming. Great pleasure, and thank you so much for sitting over here so patiently while I was talking to other people. Mayank, आप बताएं, जब आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी बड़े जोर शोर से आई, हर एक को ये लग रहा था, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, very frankly speaking, कि even though I was not very happy with the way you guys handled a few things, लेकिन मुझको भी ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी एक नई लहर, नई सोच, और in fact there would be a paradigm shift in the way politics is conducted in this country. That has not happened. Why? The first thing is that we had massive popularity, and You still do. Actually, you still do. It's not yeah, like we you do. don't. Nahi, I'm just talking about Right. people, because people see politics as the number of seats. Yes. It's a seat game. Right. So I will just go back. We have won. We have come from 0 to 4. Yes. So we have won. We have not lost. People have come from 200 to 44. So you know what I'm speaking about. Well, the thing is, even Arvind accepted it very well on the media, national media. It was a biggest political blunder anybody could have done when we left Delhi.
We left it on our own terms, on our principles, but it backfired totally. And we are still facing the heat. Of course, what BJP is doing now by indulging in horse trading, that has really harmed them a lot. And moreover, our MLAs, see, the Vidhan Sabha is still there. Our MLAs are still working in their local areas, which you don't see any Congress or BJP MLA working in their own area. You can have your reporters, you've got Channel 1 News, which is a national news channel. आप उनको भेजिए, आपको पता चलेगा वहां पे बीजेपी कांग्रेस के एमएलए नदारद हैं. हमारे एमएलए आज भी जो काम कर रहे हैं घर में खटखटा के कि आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है. This is what true Swaraj model is, what we right now let's come to Mumbai, since we are talking about Mumbai. There of course is Delhi. जहाँ तक दिल्ली का प्रश्न है, दिल्ली में आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग बात है. और मैं भी समझता हूँ तकरीबन सारा देश भी यही चाहता है कि जब महाराष्ट्र की असेंबली इलेक्शंस होंगी, बाकी सारी असेंबली इलेक्शंस होंगी, दिल्ली में भी उस वक्त विधानसभा का चुनाव होना चाहिए. Elections is the only answer. Everybody knows that. The whole world and its cousin knows that. And if the BJP tries to do any horse trading, I hate that word, by the way, horse trading. That is so. It's absolutely terrible. You know, we give a bad name to a wonderful animal. It's a noble animal. Why do we give a bad name to it? Anyway, what I'm trying to say is, let's talk about Mumbai. जहाँ तक मुंबई का सवाल है, मुंबई में आखिरकार जिस तरीके से आप आए, आप एक शरीफाना मॉडल लेकर के आए, इंसाफ का मॉडल लेकर के आए, ईमानदारी का मॉडल लेकर के आए, उसका क्या हुआ, उसके बारे में जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आगे जाकर के इस वक्त आप लोग क्या कर रहे हैं. चलिए आप हैंग ऑन हो सकता है कि आप चुनाव में ना खड़े हो सकता है, बिल्कुल, मुझे नहीं क्या आप लोगों की पॉलिसी होगी, मुझे लगता है खड़ा होना चाहिए, लेकिन आप नहीं खड़े हो रहे, कोई बात नहीं. लेकिन जहां तक समाज सेवा का प्रश्न है, आखिरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ये सिर्फ नहीं होता कि आप सिर्फ चुनाव में खड़े हों और इलेक्शन जीत करके आ जाए. आप अभी गैर इलेक्शन टाइम में, नॉन इलेक्शन टाइम में इस वक्त आम आदमी पार्टी मुंबई शहर में क्या कर रही है, उसके बारे में जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं. पहले तो बजाज साहब, थैंक यू सो मच कि आपने इनिशिएटिव लिया, मुझे मुंबई के बारे में पूछा कि हम क्या कर रहे हैं. एक नंबर है 9699493331. 9699493331. Can we have that on screen, please? अब आप पूछेंगे 9699493331. Is that the number? Yes. Can you repeat that, please? 9699 Right. 49331. You guys got it? All right, put it on. जी. अब आप पूछेंगे नंबर क्या है. हमने मुंबई में एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन खोली है जी, आम आदमी पार्टी की. इन द वेरी फर्स्ट वीक वी गॉट इट सक्सेस व्हेन वी कॉट 4 आरपीएफ ऑफिशियल्स टेकिंग ब्राइब फ्रॉम अ पुअर स्वीपर. वो 15,000 की ब्राइब उनसे मांग रहे थे. हमने एंटी करप्शन ब्यूरो में दीक्षित साहब से भी मिलके आए. हमने कहा सर हम आपका काम थोड़ा बोझ हल्का करना चाहते हैं. तो उन्होंने कहा बिल्कुल कीजिए. पहले हफ्ते में उनको पकड़ा हमने, और ना जाने मैं आपको लॉकशीट दूंगा अपनी, ना जाने कितने लोगों की हेल्प हमने की है, उनके डेथ सर्टिफिकेट्स लाने में, बर्थ सर्टिफिकेट्स लाने में, राशन कार्ड लाने में, राशन दिलाने में, और लड़कियों को जो लड़के तंग कर रहे थे फोन कर करके, अननोन कॉलर्स, रात बाद पुलिस स्टेशन में बैठ के उन लड़कों को पकड़वाया. हम पुलिस स्टेशन में बैठ के प्रेशर डाला, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा बन चुका है कि बिना प्रेशर के कोई काम नहीं करता है. हमारा गवर्नेंस का मॉडल ये है कि हम हो ना हो, वी आर बियॉन्ड पॉलिटिक्स. Whether we fight elections or not, that is completely out of question. We are going to work for the public, and our anti-corruption helpline has proven in the very first week. All right, Mayank, could you say that helpline number again, please? It's 9699 right 49331. 9699493331. That's the number on the screen. Could you look at the screen right over there, please? Is that the number? Have you got the number right? All right, we got the number right. And Mr. Ravi Srivastava is handling the phone. All right, fine. Now, Mayank, the other thing that I wanted to ask you was this. क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में देश में असल में मोदी की लहर है या थम गई है? पिछले 100 दिन जो लोगों ने देखे हैं नरेंद्र मोदी के, क्या ये 100 दिन लोगों के लिए बहुत हैं या लोग अभी भी एक इसका बड़ा डोज चाहते हैं? बताएं. देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मोदी का एक वेव तो थी, मतलब उसमें ऐसे लोग जीत गए जिन एक्सपेक्टेड नहीं थे कि वो जीत सकते हैं. वो मोदी के नाम पे जीत गए, और उन्होंने भी मोदी का बड़ा कटआउट लगाया था इलेक्शन के टाइम पे, क्योंकि वो जानते थे कि भाई हम कटआउट लगाएंगे मोदी जी का, जीत जाएंगे. पर आज क्या हुआ है, देखिए, आप अपने काम से ऊपर आते हैं. आज 100 दिन में जो शाइना एनसी जी कह रही थी कि हमने ये किया है वो किया है, 100 दिन में सबसे बड़ा मुद्दा बाबा रामदेव कहां गए? 100 दिन में 100 पैसे नहीं आए, काले पैसे, जिसको हम सोच रहे थे कि हमारा भारत, हमको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, दूध की नदियां बहेंगी, क्या क्या वादे दिखाए गए, वो कहां है? 100 पैसे दिखा दीजिए हमको. मयंक जैन जी, मैं आपसे यहाँ पर थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ. मेरी समझ में जहां तक ब्लैक मनी का सवाल है, ब्लैक मनी इज नॉट सच अ बिग इशू. That's my opinion. But price rise is.
जहां तक कीमतों का प्रश्न है, बिल्कुल, 100 दिन में I totally कीमतें agree. 100 दिन में कीमतें कहाँ नीचे आई? मैं भी अभी वेट कर रहा हूं कि टमाटर कब नीचे आएंगे। सर मैं 100 खुद रुपए के शॉपिंग ऊपर करता चले हूँ, गए। मैं खुद शॉपिंग करने जाता हूँ, मेरी बीबी नहीं जाती, मैं जाता हूँ। तो मैं जब जाता हूँ टमाटर का चेहरा देख के कई बार जो देखता हूँ, गरीब लोग लौट जाते हैं, पाव किलो टमाटर नहीं खरीद पाते आज। जी। और एक जमाने में 10 रुपए में 1 किलो टमाटर आता था। राइट। तो जिस चीज का इन्फ्लेशन का मुद्दा इतना जोर शोर से उठाया गया, आपने कहा था हम आते ही संभालेंगे, कंप्लीटली फेल इन दैट। So one final question to you. अभी भी आप काम कर रहे हैं जैसे करते आप पहले रहेंगे। काम कर रहे थे, आप वैसे ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। नंबर 2, चुनाव में आप खड़े नहीं हो रहे हैं। नहीं। चुनाव में आप खड़े नहीं हो रहे हैं, इसके बावजूद के मोदी की लहर जरा थम सी गई है। Why aren't you standing for election? Please explain. देयर आर 2 रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हम एक रिस्ट्रक्चरिंग के मोड में आ गए हैं। जो हमको ये महसूस हुआ कि दिल्ली में जब हम जीते थे, उसके बाद हमको कहीं ना कहीं लगा लोकसभा के बाद एक रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है पार्टी की। वी आर नाउ ऑर्गेनाइजिंग आवरसेल्फ एज अ कैडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। सेकेंडली, हमारे पास फंड्स नहीं है, हम फंड्स लेके चलते हैं, एक एक डोनर का नाम वेबसाइट के ऊपर है। हमारे पास 25,000 करोड़ नहीं है पेपर में आगे अब की बार मोदी सरकार डालने के लिए, नहीं हम डालेंगे, हम ये वेस्ट ऑफ मनी है। तो हम पहले इसमें ठीक होना चाहते हैं, कैडर बनाना चाहते हैं, फिर हम लड़ना चाहते हैं। मे बी यू कैन सी अस इन द कोऑपरेटिव इलेक्शंस। Right. Maybe you can see them in the corporation elections. Once again, that number again, please. The helpline number. Could you say that? 9699949331. That is the number right over there on your screen. 9699949331. That is the number, the helpline number of Aam Aadmi Party. And the Aam Aadmi Party is not going to go away in spite of the fact that they are not standing for election. यानी आम आदमी पार्टी कहीं नहीं जाने वाली, भागने नहीं वाले हैं, कहीं जाने वाले नहीं हैं, इसके बावजूद के चुनाव में नहीं लड़ रहे हैं। Right, thank you so much, Mayank. Thank you, It's sir. been a great pleasure talking to you. Thank you so much, Mayank. Thank And at the moment, let's take a look at Mr. Modi's 100 days. नरेंद्र मोदी के 100 दिन कैसे रहे? Let's take a look at that. अब की बार मोदी सरकार की अपील कर, अच्छे दिनों के सपने दिखाकर, सबका साथ, सबका विकास की नीति अपनाकर, महंगाई भ्रष्टाचार कम करने का आश्वासन देकर मोदी सरकार ने पूरे किए अपने 100 दिन। देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने अपने 100 दिन पूरे किए हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 के दिन शपथ ग्रहण समारोह के बाद मोदी ने संसद भवन पर अपना मत्था टेक ऐतिहासिक भाषण देकर अपने पहले दिन की शुरुआत की थी। क्या माँ की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। भारत मेरी माँ है। शपथ ग्रहण समारोह से लेकर अब तक हर बार फिलहाल तो बढ़ा है और वो उम्मीदें नहीं चल पा रही है भाई। अभी देखो अब आगे के क्या होता है। विकास के काम पर अगर वो ध्यान देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो बेरोजगारी है, हाँ, लोगों को नौकरी मिले, अच्छी राह मिले, पढ़ाई लिखाई की सहूलत मिले। महंगाई घटाने की बात हुई थी, पेट्रोल का भाव घटेगा तो डीजल का भाव घटेगा तो महंगाई घटेगी। 100 दिन से तो अभी घूम ही रहे हैं, विदेश दौरे ही चल रहे हैं और उनका ये जो डिसीजन है जापान का, जो जापान जा रहे हैं, जापान की कंपनीज इधर ला रहे हैं, आई थिंक इज ए रॉन्ग डिसीजन। तो मुझे नहीं लगता कि ये 100 दिन में कुछ हो पाया है और आगे भी 100 दिन में कुछ होगा नहीं। बोला सब चीज़ महंगी करके रख दिया हमारे लिए, कुछ भी सस्ता है नहीं। क्या करने का हम लोग को? अच्छे दिन तो नहीं आए, बुरे दिन आए। सबको खाली जबरदस्ती से बोला अच्छे दिन आएंगे, अच्छा दिन तो आया नहीं एक भी। पास तो हुए हैं लेकिन ऐसा नहीं कि 100% हुआ है। जो लोकल प्रॉब्लम है इन इंडिया वो भी देखना चाहिए। बाहर के टूर्स तो हो रहे हैं उसके साथ में अंदर जो प्रॉब्लम है उनके इंटरनल पार्टी में वो भी उनको थोड़ा ध्यान दे के रिजॉल्व करना है, तो वो कंट्रोल रख सके उन लोग के ऊपर और एक वो प्रॉपर फ्लो में चल सके। सरकार ने जो कुछ किया है वो सब अच्छा किया है। ओनली थिंग इज दैट अभी उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। 3 महीने में कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि वो 3 महीने में सब कुछ चेंज होगा, बट देयर इज अ पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम एवरीवेयर और वो 101% हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ सब लोग ये कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि जो उन्होंने एश्योरेंसेस दिए और जो पॉलिसी चेंजेस करने वाले हैं उससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। महंगाई और भ्रष्टाचार कम करने का आश्वासन देकर बहुमत पाने वाली मोदी सरकार के अब तक के कामकाज से आम जनता कतई संतुष्ट नहीं है।
एक अखबार के सर्वेक्षण के अनुसार इन लोगों की असंतुष्टि का स्तर 50% से भी ज्यादा है। साथ ही काले धन को वापस लाने के मामले में भी 75% लोग सरकार से संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। जो राजधानी है, जो दिल है देश का, वहां पे लोगों को सजेस्ट किया जा रहा है 10 से 11 बल्ब ना चलाओ, 12 से 2 एसी ना चलाओ, 10 बजे के बाद मॉल ना जाओ। ये कैसे दिन आने वाले हैं? ये कैसे दिन आने वाले हैं? आम जनता ने महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचार, विकास, काला धन, डिफेंस, आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और गवर्नेंस जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार के वादों और सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों पर नाराजगी जताई है। साथ ही विदेश में जमा काला धन वापस लाने के मोदी सरकार के वादे के मामले में भी 75% जनता ने निराशा जाहिर की। मगर इसी 100 दिन पूरे होने के मौके पर मोदी सरकार की एक जरूरी बात अनिवार्य होगा कि मोदी सरकार ने सबसे हटकर विदेश नीति अपनाते हुए सबका साथ, सबका विकास की राह को चुना और इस पर वो खरे भी उतरे। मगर जिस आस और आशा के साथ जनता ने मोदी सरकार को चुन कर दिया, वो आशाएं अब भी पूरी होनी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। Right, and you saw it. Mr. Modi's losing his magic. Is he really losing his magic? I'm not sure. I'm not sure if there was any magic in the first place. लेकिन इस वक्त इसी के बारे में चर्चा करने के लिए, नरेंद्र मोदी के बारे में चर्चा करने के लिए, कांग्रेस के बारे में चर्चा करने के लिए और मुंबई का क्या होगा उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे पुराने मित्र और लेमन न्यूज़ के संपादक सैयद सलमान इस वक्त हमारे साथ हैं। सलमान जी, आप बताएं, जहां तक के कांग्रेस का प्रश्न है और नरेंद्र मोदी का प्रश्न है, नरेंद्र मोदी की लहर तो चलो रुक सी गई है, थोड़ी सी थम गई। फॉर्मूला बता दिया नीतीश कुमार और लालू यादव ने कि किस प्रकार अगर आप लोग इकट्ठे लड़ें, वोट का कंसोलिडेशन हो, सारा वोट एकत्रित हो तो सकता है कि नरेंद्र मोदी को रोका जा सकता है। क्या वो वोट इकट्ठा होता हुआ आपको मुंबई और महाराष्ट्र में दिख रहा है? सलमान जी बताएं। जिस तरह से बिहार में हुआ सर, ऐसा नहीं लगता कि महाराष्ट्र में उस तरह से हो पाएगा, क्योंकि पुराना इतिहास रहा है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से मिलकर लड़ती रही है, कहने को ये एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं, लेकिन भीतर घात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बार कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास उस तरह की भूमिका बनाने वाले दो बड़े नेताओं का अभाव है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जैसे दो नेता जो अपनी पर्सनल रंजिश को भूल कर एक जगह पर आए थे। ऐसा लगता है कि आपको कि मुंबई में इस तरह के और महाराष्ट्र में इस तरह की स्थितियां बन पाएंगी, तो वो स्थिति शायद महाराष्ट्र में बन पाए या मुंबई में बन पाए, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ हैं सैयद सलमान, संपादक चैनल लेमन न्यूज़ के। सलमान, आप ये भी बताएं, अभी प्रियंका चतुर्वेदी जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, उनसे हमने पूछा कि भाई लोकसभा चुनाव के दौरान हम सबको मालूम है, आपको भी, बाकी सारी दुनिया को भी पता है, जितने भी पत्रकार हैं सबको पता है कि कई वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने ही जाकर के अलग अलग कांग्रेस के तबके में जाके कहा कि कमल के ऊपर मोहर लगाइए। वो ये मानने से इनकार कर रही थी। उन्होंने ये कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नंबर एक। नंबर दो, जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह को नज़रअंदाज किया गया, 10 बरस में मनमोहन सिंह की सरकार की जितनी भी उपलब्धियां थीं उनको ठीक तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया गया। क्या कांग्रेस ने आत्महत्या करने की ठान ली थी, या फिर यह तय हो गया कि अब राहुल गांधी के अलावा और किसी को प्रोजेक्ट ही नहीं किया जाएगा? सलमान जी बताएं। पहली बात सर, आपने बताई कि कमल पर निशान लगाइए जी। सीधे नहीं तो अपरोक्ष रूप से सही, कई नेताओं ने इस तरह की भूमिका अपनाई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था मोदी की लहर चल रही है, इसमें अपने नेताओं को अगर गाड़ सकते हो, जो बड़े नेता हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है, सांसद यही बनते हैं, मंत्री पद और बड़ी समितियां केंद्र की मिलती हैं, सब इन्हीं को मिलती है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति नाराजगी थी। ये सर्वविदित सत्य है कि मुंबई, खासकर मुंबई में भीतर घात जमकर हुई है। कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो कैसे स्वीकारेंगी, ये उनकी मजबूरी है, वो स्वीकार नहीं कर सकती। अगर नहीं स्वीकार करती तो अपने बड़े नेताओं के साथ बात कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं भीतर घात हुई है और ये सारे नेता मान रहे हैं। दूसरी तरफ मनमोहन सिंह जैसे नेता को दरकिनार किया जाना
ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को भी रास नहीं आ रहा था, वरिष्ठ नेताओं को भी रास नहीं आ रहा था, और राहुल गांधी के करिश्मे के बल पर चुनावी समर में उतरी कांग्रेस को कहीं न कहीं मुंह की खानी पड़ी। तो ये इस बार कैसे दिखाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी के करिश्मा कुछ दिखा नहीं, और कांग्रेस के पास में ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जो अपने बल पर महाराष्ट्र और मुंबई को आकर्षित कर सके। इसका भी खामियाजा आने वाले दिनों में कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दैट दिस इज एन इलेक्शन फॉर द बीजेपी टू लूज, यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए और शिवसेना के लिए मैदान साफ पड़ा है, और अगर वो आत्महत्या करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जी, वो अलग बात है, लेकिन जीत उनके सामने है, वो जाकर के जीत से हाथ मिला लें। आखिर में मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका क्या विश्लेषण है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जहां तक नरेंद्र मोदी का खुद का सवाल है, उनके 100 दिन खत्म हुए, 100 दिन का जो हनीमून पीरियड था वो खत्म हो गया। अब वो हनीमून के बाद का जो पीरियड होता है, जहां पर देश अब उनको जानेगा और वो देश को जानेंगे पूरे तरीके से, अब वो पीरियड शुरू हो गया है वेरी क्विकली, बिकॉज वी रियली हैव रन आउट ऑफ टाइम। अब आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा था अब भी वो काम करेगा या वो खत्म हो चुका है? बताएं। बिल्कुल खत्म हो चुका है, उस तरह से कम हुआ है। हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है, अब लगे चूल्हा चौका करें, बर्तन करें, घर के काम करें, उस तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें और उस तरफ अपना ध्यान लगाएं। हनीमून पीरियड खत्म हो गया है, अब जितना आकर्षित करेंगे, जितना सजे संवरेंगे और जो काम कर पाएंगे, उसी तरीके से फिर आगे का इनका प्रेम चलता रहेगा। अन्यथा ये जनता है, सब कुछ जानती है, इनकार करने से भी चुकेगी नहीं। बस खाली एक ही चीज़ ये लोग रखें, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अगर जीत चाहिए तो एक दूसरे के लिए वो भी वही न करें जो कांग्रेस और एनसीपी ने पिछले चुनाव में किया है। राइट सलमान, थैंक यू वेरी मच। सैयद सलमान, the editor of Channel Lemon News, thank you so much. Right, that's it. That's all we've got for you in tonight's Inside Story. लेकिन जाने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से। नंबर एक तो आप insidestory@lemonnews.com पर आप अपने ईमेल भेजें, आप अपना रिस्पॉन्स भेजें। दूसरी चीज, जहां तक के कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस शुरू से आज तक अपने नेताओं को भूलती आई है, उन नेताओं को और उन पार्टी वर्कर्स को जिन लोगों ने असल में कांग्रेस के लिए काम किया है, और जब भी कांग्रेस ने उनको याद किया है, उनको अपने साथ लेकर के चली है, तब कांग्रेस जीती है। लेकिन आज भी जो बातें चल रही हैं, कांग्रेस के नेतृत्व में जो बातें चल रही हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस को अपनी गलतियों का एहसास हुआ है या वो अपनी गलती से कुछ सीखी है, ऐसा लगता नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का प्रश्न है, ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की मेजॉरिटी होगी, उनका बहुमत होगा। आगे लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर हो सकती है कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। एंड ऑफ कोर्स, टू डिस्कस मोर अबाउट the redevelopment scheme which has just been announced by the government, we'll be back with you tomorrow on Inside Story. In the meantime, let's take a look at the headlines concerning Maharashtra and this region. That's all we've got for you in tonight's Inside Story. Thank you for being with us. क्लस्टर डेवलपमेंट को सीएम चौहान ने दी मंजूरी। आचार संहिता से पहले सीएम चौहान का जनता को लुभावना तोहफा। बीएमसी में महिला मेयर की आमद। स्नेहल आम्बेकर चुनी गई मुंबई की नई मेयर। स्नेहल के मेयर बनने से शिव सैनिकों में खुशी की लहर। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी। 90 में से 43 सीटों पर बीजेपी ने हरियाणा में अपने उम्मीदवारों की घोषणा। अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग से की मुलाकात। केजरीवाल ने उपराज्यपाल से की विधानसभा भंग करने की मांग। मानहानि मामले में सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ सम्मन जारी। तमिलनाडु की एक स्थानीय अदालत ने सुब्रमण्यम के खिलाफ किया सम्मन जारी।